Hello everyone, this is Fiza from Fiza IELTS. This is the continuation of day 2 of 30 days IELTS challenge. Approaching the response में ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा एंड पूरे कोर्स का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम देखेंगे 3 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन यू आर डूइंग राइटिंग टास्क 1. So without wasting any time, let's begin. So first mistake that students do is interpreting the data. What does that mean? It means कि कोई भी ग्राफ दिया है या मैप बेस्ड क्वेश्चन है and you have little bit knowledge about it, so you will start interpreting the data on your own. आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन खुद से बताने लगोगे. फॉर इंस्टेंस सोलर एनर्जी के बारे में कोई ग्राफ आ गया, ओके अब ग्राफ में तो कुछ और इंफॉर्मेशन है, बट यू नो दैट सोलर एनर्जी की हेल्प से कितना परसेंटेज कहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओके एंड यू विल स्टार्ट गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन. ठीक है, आप उसके बारे में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुद से देने लगोगे विदाउट एनी नीड. उसकी जरूरत भी नहीं है एंड यू आर टेलिंग इट. उसकी जरूरत क्या, आपके मैप में कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई है बट स्टिल यू आर टेलिंग इट बिकॉज यू हैव नॉलेज अबाउट इट. यू डोंट हैव टू डू सच मिस्टेक, क्योंकि जो ग्राफ में दिया है आपको सिर्फ वो रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ वो एड्रेस करना है, नथिंग एल्स. यू कैन सी वन एग्जाम्पल over here, this graph, okay. It is very important that you only present the data. Do not try to explain why the data is the way it is. You can see this graph. This graph shows how many PS4s were sold compared to Xbox Ones, 2 video games consoles, okay. तो Xbox, these are actually 2 video games consoles होते हैं और PS4s. You guys must know जो video games खेलते हैं उन्हें information होती है इसकी. तो अब जिनको information है, what they will say, it might be tempting to say that customers thought that the PS4 video games consoles was superior. मतलब PS4 की सेल जो होगी वो ज्यादा होगी when compared to Xbox. ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन आपने बताई, बट यहां पर जो डेटा दिया हुआ है वो फैक्ट से रिलेटेड नहीं होता है. ये जो डेटा होगा आपका, जो भी इन्होंने प्रेजेंट किया है वो आपको अपने आंसर में एड्रेस करना है, नथिंग एल्स. बट दिस इज एन इंटरप्रिटेशन, नॉट अ फैक्ट सपोर्टेड बाय डेटा. Okay, so you have to make sure whatever is given to you, any chart, any graph, you just have to address what is given in the graph. Okay, let's move to the next one. Do not explain or interpret, only present. Okay, writing an overview and a conclusion or neither. अब क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, they will write overview also and they will write conclusion also. मैंने पहले भी ये चीज बताई है that you need to write one. अगर आप overview दे रहे हो तो there is no need to give summary, okay. and अगर आप overview second paragraph में नहीं दे रहे हो तो आप end में summary कर दो. You can write either way. बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ओवरव्यू भी देंगे उसके बाद कंक्लूजन भी बताएंगे. कंक्लूजन में भी दे आर गिविंग देयर ओन नॉलेज, या फिर दोनों नहीं करेंगे. सो यू शुड नॉट डू लाइक दैट. जो पैटर्न है आपका एग्जाम का, जो स्ट्रक्चर है, दैट यू नीड टू फॉलो. Okay, let's see here. The band descriptors for task achievement in task 1 state that in order to achieve 7, the candidate presents a clear overview of main trends, differences और stages. ठीक है, आपको clear overview बताना है, highlight करना है that what is given in the graph. जो main trends है, which one is highest, which one is lowest, ये क्या stages है, वो overview में बतानी है in order to get 7. An overview is not optional. It is requirement of band 7 writing and it must be clear. आपका जो ओवरव्यू है सेकेंड पैराग्राफ, ये ऑप्शनल नहीं है. अगर आपको 7 चाहिए राइटिंग में और मोर देन दैट, ये लिखा होना चाहिए और ये बहुत क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को.
Some people like to write a summary. This is okay, as long as it is a paragraph which contains the main trends, differences or stages, and this paragraph comes in a logical position, then this meets the band 7 requirement. But don't write both. Okay, this is very important कि आपको दोनों नहीं लिखना है. You have to just write one, overview या फिर summary. Okay, एंड अगर आप समरी लिख रहे हैं देन यू नीड टू मेक श्योर दैट आपको सारे मेन ट्रेंड्स, डिफरेंसेस, स्टेजेस, पैराग्राफ लॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग. व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्राफ में जितनी इंफॉर्मेशन है दे स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग. यू ऑल्सो नो यू हैव 20 मिनट्स ओनली, और उन 20 मिनट्स में मिनिमम लिखने हैं 150 वर्ड्स. ओके, मिनिमम यू गाइज हैव टू राइट 150 वर्ड्स. तो ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट ओनली यू नीड टू राइट. लेट्स सी दिस. दिस इज ओनली अ मिस्टेक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्राफ और इमेज यू रिसीव. समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डेटा. एट अदर टाइम्स दो इट इज नॉट. कभी कभी आपका ग्राफ छोटा ही है, मतलब कि जैसे समझ लीजिए आपकी लाइफ साइकिल आ गई, तो लाइफ साइकिल में जाहिर सी बात है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, तो जितना है आपने सब लिख दिया. ओके, बट अगर बार ग्राफ आ रहा है, पाई चार्ट्स आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तो सारा डेटा नहीं लिख सकते हैं हम. इट विल एक्सीड द लिमिट. आपका 300-400 वर्ड्स चला जाएगा. देयर इज नो नीड टू राइट एवरीथिंग इन दैट केस. डू नॉट पुट योर सेल्फ अंडर प्रेशर टू कवर every single figure for every single category in the graph. This is often takes too long and waste time. ये बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट कर देगा टाइम, और आप जो आपका मेन एम है बैंड डिस्क्रिप्टर्स का 7 बैंड पाने का, आप वो लूज कर दोगे. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल वर्क ऑन कि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ. सो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट. The requirements state that you need to present and highlight key features, and part of this skill is about identifying that those key features are key features does not mean everything, otherwise it wouldn't be key. तो key features आपको पहले पहचानने हैं कि कौन से important है, and उसी को आपको notify करना है, and उसको identify करना ही सबसे important part है. एवरीथिंग लिख देना इज नॉट अ गुड आइडिया ओवर हेयर. सब कुछ लिखना बहुत ही इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन. सो देयरफॉर यू शुड अवॉइड इंक्लूडिंग एवरीथिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 मिस्टेक्स दैट students do in writing task 1. I hope you must learn today about these 3 common mistakes, and in the upcoming exam when you will be writing, you will keep these things in mind and avoid these mistakes. Thank you.